Did I discuss about corrosion, rusting? नहीं डिस्कस हो तो आज ट्राई करता है वो भी कंप्लीट करने का. फर्स्ट आई विल डिस्कस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड देन corrosion density. So oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. So first you note down meaning of the term oxidation as discussed in your syllabus. Oxidation can be defined as addition of oxygen what is oxidation? Addition of oxygen. It is removal of hydrogen. Addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electrons. Loss of electrons. This is what oxidation. इन तीनों में से कोई भी एक इवेंट होने से हम लोग बोलेगा what is happening? Oxidation. Similarly, we can define the term reduction. And what is reduction? Reduction is addition of hydrogen. Reduction क्या होता है? Addition of hydrogen, removal of oxygen and gain of electrons. Gain of electrons. To understand oxidation reduction part, ये जो definitions है वो याद भी रहना होगा, क्योंकि जब अप्लाई करेगा बहुत कंफ्यूजन होता है किसको क्या बोला जाता है. So addition of oxygen क्या होगा? Addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. Removal of hydrogen, oxidation, and addition of hydrogen is reduction. Loss of electron, oxidation, and gain of electron, reduction. Two more important terms here. One is oxidizing agent, also called oxidant. Oxidizing agent also called what? Oxidant. Oxidizing agent किसको बोलेगा? It is a chemical substance. It is a chemical substance that helps in oxidation of other chemical substance. That helps in oxidation of other chemical substance, but itself gets reduced. Itself gets reduced during chemical reaction. Itself gets reduced during chemical reaction. So oxidizing agent क्या करेगा? Oxidizing agent oxidation करेगा, but during the reaction उसका खुद का क्या होगा? Oxidizing agent itself gets reduced. वो खुद का reduction होता है, लेकिन किसी और को क्या करता है? Oxidize. किसी और को oxidize लेकिन खुद reduce होगा. Example से भी समझाएगा. And then reducing agent. Reducing agent also called reductant. Reducing agent also called what? Reductant. Reducing agent is a chemical substance
it is a chemical substance that helps in reduction of other chemical substance but itself gets oxidized during chemical reaction. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेन काम क्या है? हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? हेल्प्स इन रिडक्शन, बट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. सो दिस 4 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक एग्जांपल से समझा देगा हम तो ज्यादा क्लियर होगा. सो ऑक्सीडेशन का 3 डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का 3 पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग और दिमाग में सेट भी रखो. ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग में ये बात रहना होगा. कुछ देर बाद हम जब क्वेश्चन पूछेगा पता रहना पड़ेगा कब ऑक्सीडेशन बोलना चाहिए और कब रिडक्शन बोलना चाहिए. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स reduced and reducing agent itself gets oxidizing agent. What another term for oxidizing agent? Oxidant. Reducing agent, reductant. Okay, oxidizing agent itself gets reduced. Reducing agent itself gets oxidized. Now I am going to give example, और उस एग्जाम्पल से तुम लोग को समझना होगा ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट. ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से, यू विल हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन इक्वेशन. एक इक्वेशन, एक रिएक्शन दिया जाएगा तुमको और उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है? विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट. डन? हैव यू रिटन? Look at the example. Zinc oxide, when heated in presence of carbon, it gives zinc and carbon monoxide. जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन का प्रेजेंस में हीटिंग किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को? जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा. तो इस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन भी. तो हम लोग ढूंढेगा ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट, हम लोग पता लगाएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ZnO becomes Zn during the reaction and carbon becomes what? Carbon monoxide. तो क्या कुछ लॉस या गेन हुआ है क्या यहाँ पे? ZnO जब Zn बना तो देयर इज व्हाट? रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, देयर इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एक में हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक में क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन. ठीक है.
अब इक्वेशन में तुमको ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट ढूंढना ऐसे होगा। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट, किसी में हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, किसी में इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन कैन यू टेल मी ZNO is reduced to what? इस रिएक्शन में ZNO रिड्यूस हो गया है। ZNO रिड्यूस होके क्या बन गया है, जिंक। ZNO इज रिड्यूस टू जिंक, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बोला था, सब्सटेंस इटसेल्फ गेट्स, बस याद नहीं रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहां पे सेट रखना होगा। पहले पता लगा लिया हम क्या, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, नाउ आई एम आस्किंग व्हिच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, व्हिच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, इन चारों में व्हिच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड। रिड्यूस कौन हो रहा है यहां पे, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बन रहा है। तो अगर हम पूछेगा विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिमाग लगाना क्या, जिंक ऑक्साइड। सिंस जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड इज, कौन सा एजेंट होगा, थोड़ा देर पहले बताया था जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तो जिंक ऑक्साइड कौन सा एजेंट होगा जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स, तो जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम थोड़ा आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। नाउ इसी में हम लोगों ने ढूंढ लिया है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये बता दो यहां पे कार्बन, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। कार्बन का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन गया, so carbon is oxidized to carbon monoxide. Since carbon is oxidized during the reaction, since carbon is oxidized during the reaction, कार्बन इज क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और कभी भी किसी भी इक्वेशन में तुम लोग को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने बोले ना, तो प्रोडक्ट साइड में नहीं होता वो, कभी भी हमेशा किधर होगा, एजेंट किधर होगा, रिएक्शन वाला एजेंट, रिएक्शन करवाने वाला एजेंट किधर होगा, रिएक्टेंट साइड। अगर तुमको गैस भी करना हो पता भी नहीं तो प्रोडक्ट साइड से नहीं करना है गैस, किधर से, रिएक्टेंट साइड से। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस वन प्रॉपर्ली एकदम अच्छा से। ये फर्स्ट इक्वेशन है, वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। So in this reaction, both oxidation and reduction, they are taking place simultaneously. And such reactions where oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reactions. Are called what? Redox reactions. तो इस इक्वेशन के साथ साइड में लिख लो तुम लोग, ये एग्जाम्पल है कैसा रिएक्शन का, रेडॉक्स। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है रेडॉक्स रिएक्शन का, यू कैन नोट डाउन डेफिनेशन ऑल्सो। रेडॉक्स रिएक्शन,
those chemical reactions in which oxidation and reduction those chemical reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reactions. Those chemical reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called what? Redox reaction. So this is an example of redox reaction. Why? Because in this reaction both oxidation and reduction, they are taking place simultaneously. Done? I am going to discuss another example. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. CuO इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड. इट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, नॉट क्यूप्रस. ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड. इट इज कॉपर 2 ऑक्साइड. इसका कलर बता सकता है कोई भी? इट इज ब्लैक इन कलर एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन. तो ये जो ब्लैक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन बन जाएगा इस रिएक्शन. अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक है इसको हाइड्रोजन के साथ हीटिंग करेगा, इट विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल एंड दैट रेडिश ब्राउन मेटल इज कॉपर. एक एक्टिविटी है, बाद में डिस्कस करेगा हम लोग, लेकिन अभी हम लोग फोकस करेगा कौन सा टॉपिक पे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. So in this equation, if you look at this equation, CuO becomes Cu and H2 becomes what? H2O. ये पहले जैसा ही इक्वेशन है. यहां भी ऑक्सीजन क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन यहां था, वहां नहीं है. यहां पे ऑक्सीजन नहीं था, फिर वहां आ गए. So in the first part, in this part, we can say that there is what? Removal of oxygen. And removal of oxygen is called what? Reduction. And H2 becomes H2O. There is what? Addition of oxygen. Addition of oxygen is called what? Oxidation. It's called what? Oxidation. So can I write CuO is reduced? क्या लिखेगा? Reduced to? CuO is reduced to Cu, copper. So CuO is कैसा एजेंट? CuO is reduced to Cu. So CuO is जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Oxidizing agent. And in this reaction we can say that H2 is oxidized. H2 is oxidized to H2O. So H2 is, hydrogen is क्या? In this reaction hydrogen क्या होगा? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है? So H2 is reducing agent. H2 is reducing agent. Note it down. एकदम exactly पहले जैसा ही है. अभी हम डिस्कस करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तुम लोग सब जानता है कि एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यू नो दैट एटॉम्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब टोटल चार्ज ऑन द एटॉम इज ऑलवेज जीरो। एटॉम में टोटल चार्ज जीरो क्यों होता है? बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर, तो एटॉम का टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इफ एन एटॉम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इफ एन एटॉम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, एटॉम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो एटॉम के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Whenever an atom loses electron, atom acquires positive charge. If this atom loses 2 electrons, it will acquire 2 positive charge. Similarly, if the atom loses 3 electron, atom will acquire 3 positive charge. Whenever atom loses electron, it acquires positive charge. अब हम चार्ज देख के ये आराम से बता सकते हैं कि इस आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन कम है नॉर्मल से। ये एटॉम में 1 पॉजिटिव चार्ज होने से आई कैन से दैट इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट? 1। हियर दिस वन, ठीक है। नाउ एटॉम विथ 1 पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल करना है हमको, न्यूट्रल करना है। क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहिए, रिमूव? इसके पास तो कम है ना, पॉजिटिव होने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम है, इसको न्यूट्रल बनना है। सो एटॉम विथ पॉजिटिव चार्ज, इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम न्यूट्रल। इसका ऑपोजिट ही लिखा है, देखो ठीक से। देन atom with 2 positive charge, if it gains 2 electron, it will become neutral. Atom with 3 positive charge, if it gains 3 electron, it will become neutral. आए समझ में? ये सब क्यों बता रहा है? अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझाएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये क्लियर रहने से प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। Similarly, if an atom gains 1 electron, it will acquire positive charge or negative charge? Negative. एटॉम न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन लेने से तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? सिंपल बात है, whenever atom loses electron, it acquires positive. Whenever atom gains electron, it acquires नेगेटिव। तो ये एटॉम अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म एटॉम विथ 2 नेगेटिव चार्ज, ये आयन बन गया। सिमिलरली एटॉम इफ इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? एटॉम विथ 3 नेगेटिव। और अब नेगेटिव से न्यूट्रल करना है। नेगेटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से ज्यादा होना है, कम होना? नेगेटिव होने का मतलब नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन कम होना या ज्यादा होना? पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम? अब इनको न्यूट्रल बनना है तो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लूज करना होगा। सो दिस नेगेटिवली चार्ज एटॉम, दिस इज आयन, इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन? Atom with 2 negative charge, if it loses 2 electrons, what will happen? Atom with 3 negative charge, if it loses 3 electrons, what will happen? नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने से वापस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सो इट विल बिकम न्यूट्रल। सेकेंड वन ऑल्सो बिकम्स न्यूट्रल, सब न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमको ये बता दो कि अगर एक एटॉम में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम, और नेगेटिव चार्ज होने से? समझ में आ रहा है? सो मान लो यहां पे Mn4 पॉजिटिव था और किसी रिएक्शन में वो Mn2 पॉजिटिव हो गया।
Mn4 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होने से हुआ या इलेक्ट्रॉन लॉस होने से हुआ? सोच के बता दो हमको। दोनों ही सोच लो, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, हम तो पूछ रहे हैं। 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव जितना ज्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो गया या ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा कम है इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट हियर? 4 पॉजिटिव मतलब 4, और यहां कितना डेफिसिट? तो पहले 4 कम था, अब 2 कम है, ये कैसे हो सकता है? पहले 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम था, अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कम है? ये कैसे पॉसिबल है? पहले तुम्हारे पास समझो 4 रुपीज डेफिसिट था, अब 2 रुपीज हो गया, मतलब तुम कहीं से 2 रुपीज लिया है ना। हैव यू अंडरस्टूड? पहले 4 कम था, अब 2 कम हुआ, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया? गेन। सो इट हैज गेन व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तुम लोग को एक्चुअल में ये चीज समझना होगा। अभी और देखना, अगर हम यहां पे लिखते हैं Cu 2 पॉजिटिव, Cu बन गया, Cu बनने से चार्ज कितना होगा? 0 होगा। Cu2 पॉजिटिव से न्यूट्रल कैसे हो सकता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कम? नॉर्मल से कम, नॉर्मल से कम नॉर्मल बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? डोनेट करके या गेन? गेन। इसको जरूरत है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, याद रखना। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब, कोठारी समझ में आ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, और इसको न्यूट्रल होना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। सिमिलरली अगर हम पूछे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, इसको ऑक्सीजन एटॉम बनना है, 2 नेगेटिव का मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से ज्यादा है कम? और इसको न्यूट्रल बनना है, ज्यादा है न्यूट्रल बनना है, तो ज्यादा को तो एक्स्ट्रा को रिलीज करना होगा। सो O2 नेगेटिव लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, विल फॉर्म व्हाट? O। यहां पूरा जो डिस्कशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इफ एन एटॉम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इट हैज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो, काम आएगा। यू राइट, if an atom is positively charged, if an atom is positively charged, if an atom is positively charged, it has deficit of electrons. It has deficit of electrons. On the other hand, if an atom is positively charged, sorry, on the other hand, if an atom is negatively charged, it has excess of electrons. It has excess of electrons. ये बहुत काम का डिस्कशन है, सिर्फ आज का क्लास में यही काम नहीं आने वाला, आगे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एटॉम पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉम नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉम ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल होना है उसको, तो कैसे पॉसिबल है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉम ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है और उसको न्यूट्रल होना है, इट इज पॉसिबल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called what? Oxidation, and gain of electron is called what? Reduction. The substance that undergoes, substance which is oxidized during chemical reaction is called reducing agent. It's called what? Reducing.
The substance that is reduced during chemical reaction is oxidizing agent. Oxidizing agent. Done? Now look at another example of redox reaction. Zn solid plus CuSO4 aqueous solution gives ZnSO4 aqueous solution and Cu is displaced. ऐसे तो तुम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है? कौन सा टाइप? डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. क्या ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट? और तुम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो तुम लोग ये भी जानते हैं कलर चेंज के बारे में भी जानेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जिंक कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू. एंड जिंक सल्फेट इज कलरलेस. तो ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस. एंड जिंक के ऊपर किसका लेयर आ जाएगा? और कॉपर का कलर कैसा? रेडिश ब्राउन. सो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है. ये एक एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का भी. कैसे है वो ढूंढेगा हम लोग. उससे पहले एक बात तुम लोग को बता देता है कि यहां जिंक मेटल को किसमें हम लोग डीप करेगा? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में इसमें टू टाइप्स ऑफ आयॉन्स होता है, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन. कॉपर आयन एंड. और जिंक सल्फेट में टू टाइप्स ऑफ आयॉन्स होता है. वो कौन सा? जिंक आयन एंड सल्फेट आयन. जिंक आयन एंड सल्फेट आयन. और साथ में यहां पे कॉपर. अब इसको हम लोग स्टडी करेगा फाइंड आउट करने के लिए क्या? ऑक्सीडेशन पार्ट एंड रिडक्शन पार्ट. इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाला है? ऑक्सीडेशन पार्ट एंड रिडक्शन पार्ट. और यहां हम लोग यूज करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड. सो Zn 2 प्लस बन गया और Cu2 प्लस Cu बन गया. अभी जो समझाया था थोड़ा देर पहले, अब उसको अप्लाई करने का टाइम है. Zn 2 प्लस कैसे बन सकता है? गेन हुआ या लॉस हुआ पता करना है. और Cu2 प्लस Cu हो गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव वाला न्यूट्रल हो गया, तो कुछ लॉस या गेन हुआ है यहां पे. ठीक है, लॉस या गेन तो हुआ है, कंफर्म है. Zn becomes Zn2 प्लस. क्या लगता है यहां इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन? लॉस. So there is what? Loss of electrons. थोड़ा देर पहले हम समझाए थे एक एटॉम न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे होता है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये पहले से पॉजिटिव है. पॉजिटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम होना है ज्यादा. तो ये कम था इसके पास, न्यूट्रल हो गया. इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम था, न्यूट्रल हो गया. कैसे पॉसिबल? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Loss of electron is called what? Is called oxidation. Oxidation. Gain of electron is called what? Reduction. So we can say that Zn is oxidized. Zn is oxidized to Zn2 plus, or we can say ZnSO4. इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? जिंक आयन या जिंक सल्फेट का पार्ट बन गया कि नहीं? सो हम लोग बोल सकते हैं जिंक इज ऑक्सीडाइज, तो जिंक इज ऑक्सीडाइज, सो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट. सो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट. इस रिएक्शन में कॉपर आयन को अगर हम लोग देखें या कॉपर सल्फेट को देखें तो क्या हुआ? यहां CuSO4 और वी कैन से Cu2 प्लस इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस्ड टू व्हाट? रिड्यूस्ड टू Cu. कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो गया, क्या बन गया?
हम लोग सल्फेट आयन को कंसीडर क्यों नहीं किया यहां पे? क्योंकि उसका तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, सल्फेट आयन यहां जैसा था यहां पर भी सेम है। सो कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस टू कॉपर, और हम बता दिया तुम लोग को कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट, याद तुम लोग को रखना होगा, नहीं तो ये सब तारे जमीन पे चलते रहेगा तुम्हारे, तुमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। Substance which is reduced during chemical reaction is called, and substance which is oxidized during chemical reaction is called reducing agent. Loss of electron, oxidation. Gain of electron, addition of hydrogen, reduction. And addition of oxygen, removal of oxygen. So पता रहना, removal of oxygen is reduction. Is what? Reduction. So copper sulfate is reduced to copper. So we can say that copper sulfate is कौन सा एजेंट? कॉपर सल्फेट कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉपिक कौन सा चल रहा है? 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप चल रहा है? Oxidation and reduction reaction, and we know that those chemical reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reactions. All that examples we are discussing, ये सब redox है। क्या है? redox। अभी एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेगा, वो आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एग्जाम्पल होगा। डन? समझ में आ रहा है? लिख लो, काम आएगा लुंकर, सब लिखा हुआ काम आएगा। ओके, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर टुडेज क्लास। समझ में आ गया तो अच्छा बात। MnO2 reacts with HCl, मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 क्या नाम है इसका? मैंगनीज डाइऑक्साइड reacts with hydrochloric acid, will form MnCl2 plus Cl2 plus H2। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो, अभी। इस इक्वेशन में हम लोग ढूंढेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट, और हम सिर्फ फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पे। मटेरियल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी यूज किया हुआ, लेकिन हम मेनली फोकस करने वाला क्या अभी किस पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ढूंढेगा हम लोग। मैंगनीज का मल्टीपल वैलेंसी होता है, मैंगनीज का 2 भी होता है और मैंगनीज का 4 भी होता है। टू 3 और यहाँ 4 भी पॉसिबल है, दिखाएगा। बैलेंस हो गया। यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, इधर फिर इधर, बैलेंस हो गया। इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। हायर क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कुछ फाइंड आउट करके इन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट ढूंढा जाता है। हम तुम लोग को उसी फॉर्मेट में आयन से समझा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम लोग ये बता दो, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव होता है कि नहीं? ये जानते हो तुम लोग? ऑक्साइड आयन इज व्हाट? O2 नेगेटिव। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? 2 ना। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, यहाँ 2 ऑक्साइड। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा पता लगाने के लिए कैन वी राइट लाइक दिस, 2 into -2 इज इक्वल्स टू -4। नेगेटिव चार्ज कितना ऑक्सीजन पे? टोटल नेगेटिव चार्ज एक ऑक्साइड आयन पे तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 2 ना। तो 2 ऑक्साइड आयन है तो कितना? -4। एंड ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल यूनिट्स, ये जितना भी फॉर्मूला यूनिट है सब न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल।
तो यहाँ -4 है, तो मैंगनीज के ऊपर कितना होगा चार्ज +4, टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज 0। मैंगनीज डाइऑक्साइड पे टोटल चार्ज कितना हुआ 0। अब यहां देखते हैं, हम लोग क्लोराइड आयन जानते हैं Cl नेगेटिव, यहां कितना क्लोरीन है 2, सो 2 × -1 इज इक्वल्स टू व्हाट -2। यहां दोनों क्लोराइड को मिलके टोटल चार्ज कितना है -2, तो मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना होगा +2। मैंगनीज के ऊपर कितना +2, यहां पे मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज था, यहां कितना, थोड़ा देर पहले हम समझाया था ये बात तुम लोग को, +4 से +2 कैसे होता है, थोड़ा देर पहले का ही बात है। मैंगनीज इट इज +4, इट बिकम्स व्हाट मैंगनीज +2। +4 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है या फिर एक्स्ट्रा, कितना इलेक्ट्रॉन डेफिसिट 4 ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हुआ अभी, पहले 4 डेफिसिट था, अब कितना डेफिसिट 2। सो यहां पे क्या हुआ Mn4+ becomes what Mn2+, there is what gain of electrons, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन, तो यहां पे रिडक्शन हुआ, क्या हुआ रिडक्शन, क्या हुआ समझ में आया, रिडक्शन क्या हुआ। फिर यहां पे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये क्लोराइड आयन यहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गए, क्या बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल, और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटॉम्स न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल में न्यूट्रल होता है, molecules are formed by combination of atoms not ions, molecules are formed by combination of and atoms are neutral। तो यहां क्लोराइड नेगेटिव था, क्लोराइड नेगेटिव से क्लोरीन न्यूट्रल बन गया, नेगेटिव होने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से ज्यादा या कम, ज्यादा से न्यूट्रल, कैसे पॉसिबल, ज्यादा था 0 हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So Cl negative becomes what Cl0, so there is what loss of electrons, and loss of electron is called what, क्या बोलेगा ऑक्सीडेशन, क्या बोलेगा ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने पता लगा लिया ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। मटेरियल में हम दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ यहां पे, लेकिन इधर हम फोकस कर रहा ओनली विच कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। So can I write MnO2 is reduced to MnCl2? MnO2 is reduced to what? MnCl2. So MnO2 is क्या? Oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent. Similarly, can I write HCl is oxidized? HCl is oxidized. HCl is oxidized to Cl2. So HCl is what? Reducing agent. जो ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मटेरियल में इस मेथड में नहीं है, अच्छा से नोट डाउन कर लो, काम आएगा।